ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اچھا، عورتیں نیک آ جائیں تو پھر کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت نیک آ جائے، ہمارے گاؤں میں ایک عورت آئی تو وہ قرآن پڑھی بھی تھی، اپنے آدمی کو بھی قرآن پڑھا دیا ماشاءاللہ۔ اب تو بلا دیتی ہیں حالات اس طرح کے۔ اچھا، ایک عورت اگر چاہے تو لے کے نہیں جاتی ہے، جو اپنی بہن اور اپنی بیوی کے ساتھ کبھی نہیں گیا نا بازار، وہ اپنی بیوی کے ساتھ، جو اپنی ماں کے اور بہن کے ساتھ نہیں گیا، وہ بیوی کے ساتھ پیچھے پیچھے جاتا ہے، ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، پانچویں دکان، اب یہ پیچھے پیچھے حضرت چل رہے ہیں اور وہ آگے آگے جا رہی مہارانی، بچہ ان کی گود میں ہے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی سوٹ بھی بڑے دیکھتی ہیں، بڑا جانے کس طرح کی پسند ہوتی ہے، چل رہی ہے۔ جب ایک عورت گھماتی ہے نا بازار میں کسی مرد کو تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بلی جو ہے نا وہ چوہے کو مارنے کے بعد پھر اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اس طرح کی فیلنگ آتی ہے۔ اچھا، اگر ایک عورت اپنے مرد کو بازار پہنچا سکتی ہے، بازار لے جا سکتی ہے، تو کیا مسجد میں نہیں بھیج سکتی، نمازی نہیں بنا سکتی؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا پیغام، زندہ باد۔ بھیج سکتی کہ نہیں بھیج سکتی؟ بے شک۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا نماز پڑھنے چلا جا، میں نہیں گیا۔ میں 10 سال کا ہو گیا تو میری ماں نے کہا نماز پڑھنے جاتا ہے، میں نہیں گیا۔ پھر میری ماں نے کہا اور جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ کہتے ہیں میں نہیں گیا۔ تو پھر میری ماں نے روٹیاں بنانی تھی، اٹھی، روٹیاں گر گئی، اس نے چیمٹا زور سے میرے سر میں مارا، پھٹ گیا، سر گھس گیا اندر چیمٹا، میں کانپ گیا، ماں جا رہا ہوں۔ میں کہتے چلا گیا، 40 سال ہو گئی، نماز نہیں چھوٹی۔ ماں مر رہی تھی تو میں نے پوچھا ماں تو نے میرے سر پھاڑا تھا، روٹیاں گر گئی تھی، روٹی کی قربانی کیوں؟ تو میری ماں نے مرنے سے پہلے کہا میرے لال مجھ پہ روٹی پر پکانا فرض نہیں تھا، تجھے نمازی بنانا فرض تھا۔ جب تک عورتیں بیدار نہیں ہوں گی معاشرہ بیدار۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے آدمی تھے چودھری، انہوں نے تیسری شادی کی، تیسری بیوی انہیں اچھی مل گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی اچھی مل جاتی ہے، انہیں تیسری بیوی اچھی ملی اور وہ تیسری نے دیکھا کہ گھر میں سب کچھ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، زمین جائیداد ہے، سب کچھ ہے، مگر نماز۔ تو اس نے کہا نمازی کیسے بنانا ہے؟ بولے تو سبحان اللہ، یہ سوچ والی نمازی کیسے بنانا ہے؟ تو اس نے سوچا نمازی کیسے بنانا ہے، تو اس نے ترکیب سوچی کہ اس نوکر دودھ لے کے جاتا ہے شام کے وقت میں، چودھری سوتا ہے رات میں، بیویاں 3 ہیں مگر سوتا اپنے رات کے وقت میں سوتا ہے اپنے کمرے میں، بیٹھک میں۔ پہلے لوگ بیٹھک بناتے تھے، کوئی دوست آ جائے، احباب آ جائے تو بٹھالتے تھے، پردہ تھا۔ اب تو دوست گھر میں گھس رہا ہے اور ادھر وہ بھی گھر میں گھس رہا ہے۔ اچھا، عجیب معاملہ یہ ہے کہ ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں، لوگوں کو شرم نہیں، ان سے پوچھو تیری بیوی کی دوستی ہے یا تیری دوستی ہے، تیری بہن کی دوستی ہے یا تیری دوستی ہے؟ خیر وہ اس نے نوکر سے کہا تم لے کے نہیں جاؤ گے، دودھ میں لے کے جاؤں گی۔ شام کو وہ دودھ لے کے گئی چودھری کو، تو چودھری نے دودھ لینے کے بعد کہا میری بیویاں تو اور بھی ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا، تو کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے، آپ میرے شوہر ہیں، لیجئے یہ دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد چودھری سے بولی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ چودھری نے اجازت دے دی، پاؤں دبانی رہی، دباتی رہی، آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا۔ کہنے لگی حضور اگر آپ کو آنکھوں میں نیند آ رہی ہے، اگر میرے سرتاج آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھا دو۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ اگر تقریر پہ دھیان نہیں دیں گے تو میرے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی تو چھوڑو۔ اگر کوئی باتیں ادھر کرے گا ادھر ادھر تو ختم کر کے چلا جاؤں گا تقریر۔ نہیں، میں اکیلے ہی بولوں گا نا۔ حالات فرماتے ہیں جب ہوتا تھا میلاد شریف تو حالات فرماتے تھے جب حضور کی بات آئے تو کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ واہ واہ، توجہ کریں، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے انسان۔ آپ اگر کسی کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تو پریشان بھی نہ کریں، اگر تھوڑا سا آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے تو۔ میری بات سنیں، خیر اس نے اپنے آدمی سے کہا صبح کو فجر میں اٹھا دو حضور۔ تو کہنے لگا، وہ مرد ہوتا ہے نا مغرور، تو مجھے سمجھائے گی نماز، ہاں گیا سا، چلی گئی، بے عزتی ہو گئی اس کی۔ جیسے ہماری نظروں میں بے عزتی ہو جاتی ہے نا، یار بے عزتی اللہ والوں کی نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے دن بھی آ گئی، دودھ لے کے آئی، چودھری نے کہا آج نماز کے لیے نہیں کہے گی، کہا لیجئے دودھ تو پیجئے، آپ دیکھتی ہوں آپ دودھ پیجئے۔ اس نے دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد اس نے چودھری کو کہا میں آپ کے پاؤں دبا دوں کہ ٹھیک ہے۔ پاؤں دباتی رہی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزرا، چودھری کی پھر آنکھوں میں نیند آئے، ہلکے ہلکے خراٹے شروع ہوئے، تو اس نے پاؤں دبا کے ہلکے سے کہا چودھری صاحب آپ کو نیند آ رہی ہے، میں جا رہی ہوں، اگر آپ کو غصہ نہ آئے تو میں آپ کو صبح کو فجر میں اٹھا دوں۔ ایسا زور سے لات ماری، اسے امید
उम्मीद नहीं थी ये ऐसा करेगा। ऊपर पलंग पे लेटी थी, नीचे गिर गई। जब ऊपर नीचे गिरी, मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा, होठ फट गए, दांत कमजोर हो गए। एकदम उठी, नीचे खून के कतरे नीचे को टपक रहे हैं। अपना पूरा सामान उठाया और बर्तन लेके चली गई। कैसी नेक औरत थी, कैसी उसकी मां नेक होगी, उसका बाप कितना नेक होगा। अब जमाने को ऐसी औरतें नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, ऐसी सोच वाली पिट के कुट के चली गई, एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं तो आपको नमाजी बनाना चाहती हूँ, आप मुझको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। फिर चली गई, फिर आई, गाली सुनती थी, तकलीफें सुनती थी, परेशानियां सुनती थी, मगर रोज आती थी। कई हफ्ते गुजर गए। चौधरी बोला एक दिन के तू बड़े बाप की औलाद है, तेरा बाप चौधरी है मगर रोज जलील होती है, मैं तुझे मारता हूं फिर भी क्यों नमाज के लिए कहती है। आंखों में आंसू ला के बोली, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। अगर मेरा शौहर जहन्नम में जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो हमारी आने वाली नस्ल भी बेनमाजी हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बेनमाजी हो जाए। मेरे बच्चे इस वजह से आपके लिए नमाज के लिए कह रही हूं। इतनी मीठे अंदाज में कहा, ऐसा गुफ्तगू का लहजा था, ऐसे प्यार से बात की उसने कि चौधरी पत्थर दिल की आंखों में आंसू आ गए। रो के बोला, तू सुबह को नहीं उठाएगी, मैं आपको सुबह को उठाऊंगा। सुबह को बीबी को उठा दिया। बीबी जब सुबह को उठी, वुजू करके सज्जे में गई और रो के बोली, मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर हूं, चीजों को बदल नहीं सकती, ना मैं दिल बदल सकती हूँ, ना हालात बदल सकती हूँ। मेरे मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं पिट कुट के यहां तक ले आई, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे शौहर को नमाजी बना दे। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके शौहर की कभी भी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। दोनों के दरमियान में जब बच्चे पैदा हुआ तो उस बच्चे का नाम सुल्तानुल आरिफीन, सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, कीले ना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब ना सीखिया, कीले ना इल्म पढ़ के हूँ, एकदम गाफिल सौदम काफिर। वो वही था सुल्तान बाहू, जिसके बारे में लिखा है सरकार मुफ्ती आजम ने कि हिंदुस्तान में गौसुल आजम के दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह। माए नेक तो बच्चे नेक होते, माँ बाप जब नेक होते तो बच्चे वली पैदा होते। वाह वाह। मेरी बहनें नहीं चाहती, थोड़ा सा काम ही तो करना है। ये जो रसवाइयां कर रही हो मेरी बेटियों मेरी बहनों, ये तुम्हारे शिकम में है। तुम लड़कियों हो, अपनी लड़कियों को क्या सिखा रहे हैं? आप अपनी बीवियों को देख नहीं रहे, बच्चों के साथ बैठ के टीवी देख रहे। आप याद रखना, ये जो कर रहे हो इसका जब फल काटने का वक्त आएगा ना तो बहुत भयानक फल होगा। इसका याद रखना, मेरी इस बात को याद रखना मेरी इस बात को। लोग कहते हैं सियाबा लाजवाब थे, मैं कहता हूं बिल्कुल लाजवाब थे। अरे वो लाजवाब नहीं होंगे? बताओ, जिन्होंने मदीना छोड़ा, बीवी छोड़े, बच्चे छोड़े, मदीना छोड़ दिया, बीवी से कहते थे मेरे बच्चों को पालना और इसे फौजी बनाना ताकि ये अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाए और कयामत के दिन बाप बेटे दोनों शहादत वाली शहीदों के साथ उठाए जाए, दोनों शहीदों के दर्जे में उठाए जाए। बीवियों को, माओ को रोते हुए छोड़ के जाते थे बच्चे। मुझे बताओ आप वो कौन थे जिन्होंने दरियाओं में रुके, न सहराओं में रुके, न भूख उन्हें रोक सकी, न उन्होंने किसी कैसर और किसरा को अपनी ख्याल में और रुआब, जिसका रुआब उन्होंने अपने पर तारी नहीं होने दिया, न वो बादशाहों से डरे। इकबाल उनके बारे में कहता है, हट न सकते थे, अगर जंग में हट जाते थे पांव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। हर चीज भी क्या हम तोप से लड़ जाते थे, दस्तों दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात ने दौड़ा दिए, खोए हमने दिया जाने, कभी यूरोप के कलीफाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शाम नजरों में नजर की थी जहादारों की, कलमा पढ़ते दहली छाव में तलवारों की, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज कि मेरे रूह के जमी गोश मुल्कों में हिजाब एक ही सब खड़े हो गए। मैं मुंह धोया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नमाज, बंदा है साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ये कहते कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफारों के लश्कर किसने। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। थोड़ा सब लोग हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अगर उनकी औरतें उन्हें इजाजत न देती, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो झगड़े ना होते मदीने में। बहुत अच्छा। अरे झगड़े होते कि नहीं होते बोलो? अरे कहां जा रहे हो? बच्चों को किसी के साले छोड़े जा रहे हो?
मगर उनकी औरतें ऐसी थी। अच्छा, जो अपनी बहनों की, अपनी बीवी के कहने पे अपनी बहनों के घर नहीं जाते डर की वजह से, वो तो समझ लेंगे मैं तकरीर क्या करना चाह रहा हूं। अभी डिस्कस चल रहा है बीवी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं कौन होता है? जो बीवी का कहना माने गुलाम नहीं होता। झूठा खाए पिए वो भी गुलाम नहीं। जो बीवी के रूठने पे उसे मना ले वो भी गुलाम नहीं। जो बीवी के मैं के वालों की इज्जत करे वो भी गुलाम नहीं। हाँ, जो बीवी के कहने पे अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे पक्का गुलाम है, उसे सनद देनी चाहिए, वो तो ब्रांडेड गुलाम है। वो जो है कि नहीं भाई, थोड़े से सुलगते पहलू हैं इस वजह से बात कर रहा हूं, जरा बोले तो सुभान अल्लाह। कौन है वो सहाबा? उनकी औरतें कौन थी? मदीने की वो औरतें जिन्होंने अपने बेटों को, जवान जवान कड़ियल जवानों को हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। नबी ने फरमाया, कुफार कह रहे हैं कि रस्सियां लेके चलो, अल्लाह के रसूल को बांध के लेके आएंगे। नबी ने फरमाया, कौन है जो अपने बच्चों को दे दे? कौन है जो आए? पूरे दिन मेला लगा रहा औरतों का, जवान जवान कड़ियल जो सुभान अल्लाह वगैरह नहीं कहते ना, महफिल में नहीं बैठना चाहिए, मैं तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आदमी की दुश्मनी चल रही है ना किसी से, और आदमी ज़ौक़ हो और गालिब शेर अच्छा कह दे, तो ज़ौक़ दुश्मनी के बावजूद जो है वो सुभान अल्लाह कह दे। खुदा की कसम, बस ज़ौक़ तो दोस्त भी अच्छा नहीं और साहिब ज़ौक़ दुश्मन भी अच्छा होता। मुझे बोझ बन गए आके भाई महफिल में, यार कुछ तो बोलो, क्यों आए हो भाई? कुछ पता ही नहीं हो, तब मुझे है कि नहीं भाई आपको? वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी मोड़ा गए। मगर मैं भी सोच रहा हूँ, हबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे न रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो औरतें सूरे दिन अपने जवान जवान लड़कों को, बहनें अपने भाइयों को, बीबी अपने शौहरों को लेके आई, और पूरे दिन में एक औरत ने भी नहीं कहा मेरे आदमी का ख्याल रखना, मेरे बेटे का, मेरे भाई का। नहीं, सारी औरतें कहती थी, या रसूल अल्लाह, जब जंग हो तो अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं शहीद की बेटी कहलाऊं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। राम जब भी बयान होगा अपने मिजाज से बयान होगा, वरना वो कोई और चीज होगी जो बयान होगी। इस्लाम ऐसे ही बयान होगा जैसे हमारे बड़ों ने बयान किया। पूरा दिन हो गया, आते आते रात का वक्त है। मेरी बहनें सुने, सैयदा खंसा नाम की एक औरत रात के वक्त में रो रही है, अपने बिस्तर पर, अपने मुसल्ले पर रो रही है। रात का वक्त है। अच्छा, खंसा कभी आप इसे विकिपीडिया कीजिएगा तो आपको मिलेगा, खंसा एक शायरा थी। वो जब ईमान लाई तो हुजूर से कहने लगी, मैं जबान से कलमा पढ़ती हूँ मगर अब मेरे सर के बालों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। रात के वक्त में रो रही है। बच्चे उठे, एक 13 साल का, तकरीबन 11 साल का, दोनों बच्चे उठते हैं। उठ करके कहते हैं, अम्मी जान रो क्यों रही है? हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी, मेरे बच्चों तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा नहीं मेरे बच्चों, मैं नहीं बता सकती तुम्हें। कहा नहीं अम्मी बताओ। बच्चों ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। एक तो ये बेबा मां थी, यतीम बच्चों के हाथ लगे तो रोने लगी। कब बात ये सब औरतें अपने अपने जवान बेटों को दे आई हुजूर की बारगाह में। अगर तुम भी जवान होते तो मैं हुजूर की बारगाह में दे आती। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे भी जाके अल्लाह के रसूल के नाम पर शहीद हो जाए। दोनों बच्चे छोटी छोटी तलवारें लेके आए और घुमा के बोले, चल लेके चल मां, तेरे पर हर्फ नहीं आने देंगे, तेरा नाम बदनाम नहीं होने देंगे, लेके तो चल, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे हुजूर के नाम पर, चल लेके चल। मां खुश हो गई, हुजूर की बारगाह में लेके गई। नबी ने फरमाया, तेरे बच्चे छोटे हैं। तो 13 साल के बच्चे ने तलवार के जोहर दिखाए, तो मैं ये जा सकता है मगर 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो 11 साल वाले ने अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, कहा हुजूर मैं भी इसके बराबर का हूं। देखिए वो उचकने लगा, ऊपर तो उचकने लगा। नबी ने फरमाया, नहीं तुम छोटे हो। कहा मेरी कुश्ती करा दीजिए इससे, मैं ज्यादा ताकत रखता हूं अपने बड़े भाई से। और मैं ठीक है, आगे बढ़ा।
आगे बढ़ने के बाद छोटे भाई से बोला, छोटा भाई बड़े भाई के हाथ को हाथ पकड़ के बोला, ऐ मेरे भाई तुझे पता है मैं कमजोर हूं, मगर कमजोरों पे जो रहम करे अल्लाह उस पर रहम करता है। मेरे भाई अगर तू आज गिर गया तो अल्लाह इसका बदला देगा, अगर तू अकेला शहीद होगा तो देख ये अच्छी बात नहीं है, दोनों भाई मिलके शहीद होंगे। देख मेरे भाई मैं दोनों है, दोनों मिलके शहीद होंगे। जब वो छोटा वाला बच्चा रोया तो मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा और फरमाया जब तक ऐसी माँ है और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे कोई इस्लाम का बाल भी तो नहीं कर सकता है। ऐसी माँ ये माँ, माँ ने कहा आओ मेरे लाडलो, आओ तुम्हें प्यार कर दूं, आओ तुमसे प्यार कर लूं। माँ ने अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कहा आओ लाडलो मेरे प्यारो, मेरे जिगर के टुकड़ों प्यार करूं। तुम्हारा बाप बहुत दिनों पहले दुनिया से चला गया था, मैंने मदीने में बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई है, मजदूरियां करके तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की कुर्बानी के लिए। मेरे लाडलो, मेरे लाडलो, एक काम करना बस, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। हाँ जब तुम्हारे ऊपर हमला हो और जब तुम शहीद हो मेरे लाडलो तो ख्याल रखना जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, एक भी जख्म पीठ पे ना आए, ताकि लोग देखें तो कह दे कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये एक औरत और आ गई, कहने लगी मेरे बच्चों को भी लेकर के जाए। मेरे कहा कहाँ है तेरा बच्चा? बच्चा खड़ा है, 2.5 साल का बच्चा खड़ा है। हुजूर से कह रही इस बच्चे को मेरे, फरमाया तेरा 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा जब में? कहा हुजूर आपकी तरफ तीर आते होंगे मेरे आका। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा बस हुजूर आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी? जी जी। हुजूर से कहने लगी बस मेरे बच्चे को, मेरे लाल को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर दुश्मन के तीर आए और मेरे लाल के 1-2 तीर लग गया या रसूल अल्लाह तो मैं अपने रब की बारगाह में सुरखरू हो जाऊंगी कि तेरे महबूब के ऊपर आने वाले तीर। मेरे लाल ने रोक ली, हुजूर इसके अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, यही बच्चा है, इस माँ का कबूल करे। हुजूर ने बच्चे को गोद में उठा के प्यार किया, फरमाया तेरी नीयत इतनी बुलंद है कि तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तार कुल है, इसको जो चाहे अता कर दे। यूं कहा करो कि अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब।